much because I want my film to talk when it comes on screen. So I'd just like to thank Purnima ji to give me this chance to prove that we can make good films here. And thank you, Sen, for believing in me and my work. And my entire team, my entire crew is my strength. My wife is my strength. Everybody, I thank you all. Thank you all who came here. And I'd like to now give it back to her, so that Kajol, so that she can take it further from here. And I'll just say that नहीं उसका this film is special. लेडी का ऑडियो Not मिल because we रहा made है it, ऑडियो but it नहीं is special because it gives you a nice message, but in very entertaining way, and you love it. जिसमें लगाया तुम दूसरा जगह नहीं फिर और जगह नहीं Ashutosh Rana. Please put your hands together and a huge round of applause for Mr. Ashutosh Rana. Manjri Fatnis. Can we have her on stage, please, with a huge round of applause? So that's the newest heartthrob of India. Please put your hands together for the lover boy, Manch Kohli. Can we have him on stage, please? Lack of words, I would just like to say let's welcome the living legend on stage, Mr. Prem Chopra. प्रेम नाम है मेरा Thank you guys. So I would like to invite the producer, the executive producer and the director to come on stage and also unveil the logo and fulfill the evening. Thank you. Okay, the first question is for Mr. Abbas Khan. So we heard you shot a very emotional scene in minus temperature in United States. How did you feel, or how did you just not feel? Well, good evening everyone, and thank you very much for being present here. It means a lot to us and our film, and all the encouragement and support that you give is very encouraging. Thank you. Now coming back to your question, you know, as actors we tend to shoot in extreme conditions. You know, sometimes it's very hot, sometimes it's very cold. So when we're involved in our work, we kind of really don't give too much of thought. When I did a film called Maakare Salam also, I was shooting in like minus like 5 degrees and all that. But this time, it was what, how much? 10, 12, minus 10 and 12, which I was not even used to. And then there was this wind chill factor, but जब आप scene में involved होते हैं, तो आपको पता ही कहाँ से गर्मी आ जाती है.
मेरे में भी कई with temperature I felt like I was like I think मंजरी आपके साथ था सीन I almost started getting hot in any case so it was like that, you know. So once you're involved, then it really doesn't matter what the temperature is. So it was a good experience though. Awesome. We shot in some beautiful locations and we shot in America. The film is so beautiful in the way it's been shot and the locations and all are so wonderful. It's really a privilege to be a part of this film. Which is your favorite location? Well, we shot in Maryland, you know, so we shot in some really good location. We shot in Washington DC. So we we shot over there. So it was very nice, yeah, lovely. Awesome. So the next question is for Prem sir. Sir, what was the best part about playing your own character, which was Shaukat Ali Mirza Qawwali wale? कराची वाले जाहिर बात यह है कि आप सब लोग जानते हैं मैं कितना शरीफ आदमी हूँ तो अभी तो वो रोल तो नहीं कर रहा ऐसे लगता था कभी चाचा जान कभी दादा जान कभी पिताजी ऐसे रोल करता हूँ बड़ा अच्छा लगा ये रोल करते हुए done very well, written very well by Keshav, and Keshav is a very innovative director, very hard-working, and he gave some excellent scenes and shots, which I was very pleased to see that, because his idea is very different than most of the film directors here in this country. So hopefully, with your cooperation, this picture will succeed, and I wish the entire thing very fast. And Purnima ji, who is the producer and the financer of the film, she has also done a very great job in organizing things, and everything is gone on beautiful manner. Thank you so much, all the best. Thank you sir. So Himansh, why so much of a gap after Yaya? What took you so long to come back when girls are dying to see you on screen? Were you waiting for me? Kind of. Just like many other women. So, Thank you so much. many other girls, yeah. तो आते रहना पड़ेगा फिर तो. Definitely. After Yanya, actually, things were going really good and people were really appreciating. Everybody was really appreciating. My songs were everywhere. I think अभी तक बज रहे हैं हर जगह. ब्लू है पानी पानी पता नहीं. I think हम लोगों ने सबको फाइनली बता ही दिया कि पानी का रंग ब्लू होता है. But after that, for all the movies I was approached. तो मुझे ऐसा लगा मैं हीरो बनने आऊँ लेकिन सबको मास्टर बनाने में आ गया मेरे को. School characters, more of school, and college भी I think बहुत मुश्किल दिख रहा था. Then it was only school. So I asked my director, producers and all my friends that what should I do next? So they were like, I think यार अभी तू बहुत छोटा लग रहा है तो एक डेढ़ साल का कुछ गैप ले थोड़ा बॉडी बना and groom yourself and कुछ different देखा. So I think 1.5 years later you can see वहाँ पे भी और यहाँ पे भी कुछ लग रहा है तो बता देना difference. Thank you so much. Ashutosh sir, what made you take up this role when you were so choosy about your movies anyway? I mean, it takes ages to see you on screen. So why this movie? देखिए होता ये है कि हर माँ अपने बच्चे को राजा बेटा कहती है और जब किसी फिल्म में आपको राजा बनने की नौबत आ जाए तो आप तुरंत उसको स्वीकार कर लेते हैं. तो आई एम प्लेइंग ए रोल ऑफ ए प्रिंस ऑफ मेवाड़. तो ये और लोग पैसे दे के राजा बनते हैं इसमें मुझे राजा बनने के लिए पैसे दिए गए हैं पूर्वज जी और केशव के द्वारा. लेकिन जिस तरह से केशव जब आए थे इस स्क्रिप्ट को लेकर और उन्होंने जो नरेशन दिया था और इनके हाथ में स्क्रिप्ट नहीं थी लेकिन जिस तफसील के साथ और जिस बारीकी के साथ उन्होंने पूरी की पूरी फिल्म शुरू से लेकर अंत तक और सुनाई और मुझे लगा कि ये एक अद्भुत सुलझा हुआ व्यक्ति है जिसको अपनी स्क्रिप्ट के बारे में अपने किरदारों के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पे भी क्लियर है कागज के ऊपर भी क्लियर है. और मैंने अभी तक कभी इस किस्म का कोई किरदार नहीं किया था जो अक्सर मुझे मैं भाग्यशाली हूँ
कि चुनौतीपूर्ण और बड़े चैलेंजिंग और ग्रे शेड के किरदार दे रहे हैं, या ये कहें कि नेगेटिव रोल्स को हमने बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किया है, इसलिए उसका एप्रिसिएशन भी मिलता रहा है। लेकिन इस किस्म का किरदार कभी हमारे हिस्से में आया नहीं था और हमें लगा कि विक्रम प्रताप सिंह अगर कोई हो सकता है और वो एक ही होता है और वो हम हैं, तो ये कर लिया गया। बेशक सर, थैंक यू सो मच। Manjri, I have one personal question, then we'll ask the other one. You're one of those very few actresses to shoot next to White House, and I've been extremely intimidated if I was there. Were you? I think more than me, the police out there was intimidated by my presence out there because they were like, I know what this girl's going to do in the White House. She's just looking at mesmerized. I don't know what she's going to do. So they just kicked me out from there. That's what happened. Okay, and what was the hardest part about playing Alia? You obviously can't reveal much, but some challenge that you faced because you were playing Alia. I think Alia by far is the most difficult role I have played till now, and I've worked very, very hard on this. So I mean, like you'll watch it in the film. I hope it's come out really nice the way I've done it. But it was difficult, especially because she didn't have a particular character throughout the film. But when she is switching from, there's some change that's happening, like in everybody's life, when you are growing up as a teenager, and then, when you keep growing up, like you have so many lessons you learn in life, and it changes you as a person at every step, and, you become a more evolved person. So there's a little graph, there's a huge graph in the character which keeps going up and down, so, so that's why it was very difficult. Awesome. So Purnima ji, despite being right from the heart of Hollywood, what made you produce a Bollywood movie? Because you're very close to LA and Hollywood projects, and I know everything. So why Bollywood? Why Jeena Sina Naam Hai? That's a very good question, because I am an Indian from my birth, but if you really want to bring out emotions and if you really want to bring out character, I think a Bollywood movie are the best movies. They really can pull out the character in a person. That was some kind of Mr. French. Yeah, so even if you writing a story is something, but when you enact that same character, I would any day hang my hat on a Bollywood movie, because in that 2.5 hours, you have basically traveled so far from your emotions, your characters, that you have lived, I think, every part of your life in those 2.5 hours, if the movie is still 2.5 hours nowadays. That's the reason why I said if I have to do anything, then I would like to tap on this Bollywood market, because people here know how to express. People here know how to express their sorrow, their joy, and their fear, their emotions. So that was the main reason, and I think I'm very happy. You chose Jeena Sina. Yes, correct. Thank you so much. Can we have the mic for Stanton now? Stanton, your love for India is pretty evident, but your love for Bollywood isn't. So have you seen Bollywood movies, or is it your first ever venture in a Bollywood movie behind the scenes or front? We watch Bollywood films all the time. Which is your favorite? This one. Ah, that's a good one. It's increased my reading skills because I have to read the subtitles. Yeah, you need something. Unfortunately, I miss a little bit of the storyline because I'm reading, but all in all, I've really appreciated Bollywood films for love stories, things like that. Dancing. And we gather together as family and watch a lot of movies together with the brothers and sisters, and love it. Thank you. So guys, now you can take over, and whatever questions you want to ask, just raise your hand and you'll get the mic, and then we can take it further. थैंक यू। मैं भाई और नॉट हूँ, अभी मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट आई लाइक टू थैंक माई एंटायर क्रू, माई कास्ट, प्रभास सर, आशुतोष जी और प्रेम चोपड़ा सर. It was looking very difficult when we were initially looking for the casting and everything. तो मैंने सोचा था कि क्या करें, but I thought कि let's try. तो प्रभास सर से पहले मुलाकात हुई. I was very much nervous कि क्या बात होगी क्या नहीं होगी, what will he say.
एंड देन यू नो पॉजिटिव रिप्लाई मिला तो मुझे और इंकरेजमेंट मिला, तो मैं थोड़ा और बदमाश हो गया और मैं आगे ट्राई करता हूँ। उसी तरह से आशुतोष सर, प्रेम सर के पास जाते हुए तो मैं खुद इतना घबरा हुआ था कि मैं क्या बोलूँगा, कैसे समझाऊंगा। लेकिन आई मीन आई एम थैंकफुल, मेरी स्टार कास्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है फिल्म के अंदर। आई एम वेरी हैप्पी विद परफॉर्मेंसेस, आई एम वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ कैनवास दैट वी वांटेड टू क्रिएट। सो यू नो ऐसा नहीं लगता है बिल्कुल देखिए कि आप यू फील दैट यू आर इन सम अदर वर्ल्ड। हर एक जगह पर, हर एक लोकेशंस पे, हर एक चीज पर हमने बहुत मेहनत की है फिल्म के अंदर। इट्स लाइक 30-35% VFX है, CG है, एनिमेशन है और म्यूजिक है। इट्स लाइक इट्स सारा फिल्म, इट्स अ बिग फिल्म, बिग कैनवास फिल्म। तो हम चूंकि हम पहली बार बना रहे हैं, लेकिन आपको देख के लगेगा कि कोई बहुत एक अच्छी फिल्म आपको देखने को मिलेगी कुछ ही दिनों में। और मेरे पास अभी वर्ड्स नहीं है, but I'm very thankful to all of you you came here to encourage us. Thank you very much, my star cast, Abbas sir, Ashutosh ji, everybody, thank you very much. ज़्यादा बोलूँगा तो फिल्म के ऊपर रिलीज हो जाएगा, इसलिए मैं चुप्पी करके I'll hand it over to you if you want to ask anything. Thank you, sir. So we have someone who wants to ask. और आपके लिए जीना किस चीज का नाम है? आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों आपने ये सब्जेक्ट चुना इस फिल्म का? देखिए मेरे लिए जो जीना है वो ये है कि अगर आपके मन में जो करने की इच्छा है उसे अगर आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ बिना किसी अवरोध के कर पा रहे हैं फुल स्विंग में, तो जीना उसी का नाम है। और मुझे लगता है कि आशुतोष राणा का प्रोफेशन भी एक्टिंग है, आशुतोष राणा का एजुकेशन भी एक्टिंग है और आशुतोष राणा का पैशन भी एक्टिंग है। तो इस वजह से मेरे लिए जीना इसी के नाम, ये तीनों चीजें एक जगह मिल रही हैं। और मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि इसमें वो आपने किरदार का लुक देखा और मुझे लगता है कि अगर इस किस्म के लुक का किरदार है, ये सिर्फ एक फोटो देखी है आपने और इसके कई किस्म के रंग, दो फोटो देखी है आपने अभी, एक उस तरफ थी क्लीन शेव और एक इस किस्म के जो जिसमें जब नई एंट्री हुई थी। तो इसमें कई सारे ऐसे रंग हैं जिसको आशुतोष राणा ने अभी तक कभी टच नहीं किया था। और मुझे लगा कि एक एक्टर के रूप में अगर ये एक्सप्लोर करने का मुझे मौका मिलता है तो ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो 100% उस समय हमारे पास था वो हमने जान लगा के किया है। और अभी तक मेरे जितने भी परफॉर्मेंसेज हैं, ये प्रसन्नता की बात है कि आप लोगों ने फिल्म तक कुछ हुआ हो लेकिन पीठ हमारी ठोकी है कि शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो इस बात की हमें प्रसन्नता है कि ये फिल्म भी बहुत अच्छी लगेगी और ये किरदार भी आपको बहुत रास आएगा। आपसे सवाल है, जैसा कि सर ने कहा कि जीना जो भी मन कहता है वो कहना चाहिए, आपके हिसाब से जो चीज कोई भी कहता है तो आप किस चीज को पसंद करते हैं, कहना या करना? इस फिल्म को आपने क्यों किया? फिल्म करने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप पहले बात तो जो सब्जेक्ट आपको सुनाया जाता है उससे आप आइडेंटिफाई करते हो, उस कैरेक्टर से आप आइडेंटिफाई करते हो, आपको कितना उससे रिलेट करते हो। देन द पीपल हु आर मेकिंग द फिल्म, आपको पता है कि ये फिल्म की जो जर्नी है वो एक कोई 10-15 दिन की होती नहीं है। मतलब बाय द टाइम आप एक फिल्म को आप फिल्म मेकर से मिलते हो, बाय द टाइम डिस्कशन होता है, डेटें फाइनल होती हैं, एक पूरा प्रोसेस होता है फिल्म के दौरान काम करने का, एक ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है आपको। अब इस स्टेज के ऊपर हम आ गए हैं कि हम हमारा एक जजमेंट हो जाता है कि लोगों के साथ काम करने के लिए हमारा what will be my equation with them, you know, because you have to interact with people. So when you meet people like Keshav and you know he is, you know, making his debut as a filmmaker, आप इनमें वो फायर देखते हैं, एक्साइटमेंट देखते हैं, इनमें अच्छाई देखते हैं, दिल करता है कि आप इनके साथ काम करें क्योंकि ये जो जोश और जुनून लेके आते हैं हम we become a part of that, we become a part of the journey and sometimes their fate and their life and success can affect us also and we learn a lot. तो बहुत से it's a holistic approach towards doing a film, कोई एक particular reason नहीं होता है फिल्म करने का और उसके बीच में पैसे भी होते हैं लेकिन what I'm saying is that basically it's about the people you work with, it's the work, the role, the character and the film and I can see that I'm happy जो मैंने decision लिया is the right decision because I can see the film being made with a lot of love and passion. Thank you very much.
Thank you, sir. आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मैं आई एम वेरी हैप्पी टू गिव इट, बट आई थिंक उसका एक सही समय होगा जवाब देने का जब हम उस फिल्म के प्रमोशन करें। इस वक्त वी आर ऑन somebody else's set, somebody else's promotion. जीना इसी का नाम है. I think it's more appropriate that we talk about this film than to talk about some other film and some other role and some other character. बॉलीवुड में आई थिंक कुछ ना कुछ विवाद होता रहता है. Again, I think फिर से आप इस जिस चीज के लिए हम आए हैं आप उससे डिबेट करें. This is not a platform for me to sit down and comment about other things. You know, we are talking about the film. Let it be the film promotion. कभी आप मुझे अकेले में मिलोगे, आपको कुछ और सवाल पूछने मेरे से, हम तब जवाब देंगे. अरबाज, लेकिन बात काफी सेंसिबल थी. सलमान ने जो बात बोली है, रेप वुमेन्स के बारे में जो उन्होंने सुबह सुबह कहा, काफी बवाल हुआ इस चीज को लेकर. आप पर्सनली क्या मानते हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए जिस हिसाब से उन्होंने कहा था, क्योंकि आप भाई हैं, आप जानते हैं कि किसी ये सवाल मुझसे आज किसी ने पूछा था. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि not every question or not every incident that happens with Salman, I am supposed to be answerable to that first and foremost. मतलब सलमान शादी कर रहा है नहीं कर रहा है, सलमान की गर्लफ्रेंड कौन है, सलमान क्या बोलता है. सलमान एक 50 साल का आदमी है जो अपने हिसाब से जो बोलता है, मीडिया को बोलता है, अपनी जिंदगी जैसे जीता है. मुझसे ये भी पूछा गया कि आपको पता है सलमान का है. मैंने बोला मैंने सलमान पे GPRS नहीं लगा रखा है कि वो कहाँ है, किधर है, किसके साथ बैठा है. अच्छा आपने नहीं देखा क्या हुआ? मैंने बोला नहीं मैंने नहीं देखा. आपने नहीं सुना क्या हुआ? मैंने बोला नहीं मैंने नहीं सुना. तो ऐसा होता है कि आई डोंट नो, आई कुडंट कमेंट टिल आई हर्ड व्हाट ही हैड सेड, जो मैंने शाम को सुना. अब कुछ चीजें होती हैं कि हम बातों में बोल देते हैं, उसका हम इंटेंशन देखना चाहिए कि वो इंटेंशन क्या था. मुझे डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है कि सलमान ने जो कहा उसके अंदर इंटेंशन बुरा नहीं था. इट वाज जस्ट अ काइंड ऑफ, जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं या आपको बोलते हैं ना कि मेरे सर के ऊपर पहाड़ जैसा होता है, या कोई मैं गधे की तरह मैंने काम किया, आप बता रहे गधा वर्ड यूज किया आपने, तो कोई एनिमल एक्टिविस्ट आपके पीछे पड़ जाए. तो कभी कभी आप कुछ चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, आपका मतलब बुरा नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको डिसेंसिटाइज करो या आप मतलब आप उसके ऊपर ओवर सेंसिटिव हो जाओ, तो फिर आप किसी भी चीज के ऊपर एक विवाद या एक बवाल क्रिएट कर सकते हो. आई एम श्योर सलमान मस्ट हैव रियलाइज्ड कि जो कंपैरिजन जो उन्होंने किया है वाज नॉट मे बी अप्रोप्रिएट, एंड फॉर दैट if he feels the need to apologize, he will apologize or not apologize. Why are you asking me a question whether he should or not? I don't think it's fair. मेरा ओपिनियन, मैं बोलूं हाँ उनको apologize करना चाहिए, या मैं बोलूं कि नहीं करना चाहिए. I don't think it is fair. I think it is his issue. आपको अगर मौका मिले उनसे पूछने का तो आप पूछिए उनसे, but I should not be saying कि नहीं करना चाहिए, because मेरा जो भी ओपिनियन है, शायद मुझे लगता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई चीज बोली है, एंड अगर गलती से अगर उन्होंने बोला तो मे बी ही शुड प्रॉब्ली गिव अ जस्टिफिकेशन, बट आई डोंट थिंक आई एम एंटाइटल्ड टू मेक अ कमेंट एंड से दैट ही हैज टू अपोलोजाइज. आई वुड होप दैट ही गिव्स अ क्लैरिफिकेशन फॉर व्हाटएवर, बिकॉज़ कंट्रोवर्सी हो गई है तो उसका एक बनता है कि एक जवाब देना बनता है, क्योंकि पीपल लुक अप टू हिम, ही इज गॉट lot of following and he's like a youth icon and whatever. So if he's made a statement that does not look very appropriate या कान को अच्छा नहीं लगा, तो शायद I think in time he will give a statement. But अरबाज, सलीम साहब ने इस पे माफी मांगी है सलमान के बिहाफ पे. सलीम साहब is the father. अपने बच्चों के लिए कोई चीज अगर कोई लोगों को लगता है कि कुछ गलत हुआ है, या कभी कभी आदमी इस वजह से भी माफी मांगता है क्योंकि किसी को कोई चीज बुरी लगी हो कि यार चलो मेरी गलती नहीं है, मुझे नहीं लगा मैंने कुछ ऐसा कहा, लेकिन आपको बुरा लगा तो मैं माफी मांगता हूं. हमेशा माफी मांगने का रीजन इस वजह से नहीं होता है क्योंकि यू आर जेन्युइनली सॉरी अबाउट व्हाट यू सेड और डन. समटाइम्स बिकॉज यू हैव हर्ट समबडीज सेंटिमेंट्स, बिकॉज यू हैव सेड समथिंग दैट इज नॉट सो अप्रोप्रिएट, यू अपोलोजाइज फॉर दैट. एंड लाइक आई सेड, दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट सलमान एंड हिज इश्यूज. वी हैव कम हियर फॉर समबडी एल्सेस वर्क. Let's finish that, and then maybe at some other stage we can talk about this. Thank you. I think it's not fair. These people are not interested in answering what Salman Khan has said at the end of the day. Thank you so much. आपकी एंट्री थी, उन्होंने बताया कि एज अ जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया, वो एंट्री आपकी जो हुई थी तो उन्होंने आपको ये क्या कि जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया करके गलती से दे दिया था उन्होंने. हर चीज को मतलब बिलीव कर सकते हो. अभी इनसे गलती हो गई, दूसरा जाओ अब मेरे को जुर्माना भरना पड़ेगा कि आपने इस पिक्चर में किया है क्या. पर्सनल लाइफ में भले ही जेम्स बॉन्ड हो,
स्क्रीन पे शायद नहीं हुआ है। हेलो हेलो No, no, I meant it. I totally meant it. He does look like James Bond. But which one? There are so many James Bonds. Roger Moore, Sean Connery. Or Indian saying, if they make it in India, I think they should take you. I'm not इंडिया में अगर जेम्स बॉन्ड पिक्चर बनेगी तो मैं राइट कास्टिंग हूँ इनकी वजह से। Good evening to all. Hello. I'd like to ask anyone can. You want to answer? I can answer this question. If I give you the subject, I might be telling you the story, but I can give you a little gist of Jeena Isi ka naam hai. I'll try my best to speak in Hindi also. That's good for me too. जीना इसी का नाम है क्योंकि सबके जीवन में सुख दुख आता है, सबके जीवन में there's all kinds of emotions are there in someone's life. मगर जीना उसी का नाम है अगर between those emotions, between those feelings, between that pain and sorrow and happiness, you make your way through and you come out as a winner. We always cannot blame the situation. We cannot blame the man or we cannot blame the woman. We cannot do that because जीना इसलिए का ही नाम है कि हम उसके बीच में से हम कैसे निकलेंगे, हम कैसे जीत बन के निकलेंगे. So, did I answer your question? Did I confuse you? लोगों देख के बड़ी खुशी, बड़ा अच्छा लोग है, जीना इसी का नाम है। हमसे नहीं लेगा। कुछ होना हो लेकिन बीबियाँ बहुत खुश हो जाएंगी, बीबियाँ फिल्म प्राइमरी लिमिटेड देख के। बीबियाँ घर की बीबियाँ बहुत खुश हो जाएंगी। खुश हो जाएंगे? Thank you very much. I think, well, जैसे कि कहा मैंने कि सारी गलतियाँ आदमियों की नहीं होती, ना औरतों की होती, सिचुएशन की होती है। अब उस सिचुएशन से इंसान कैसे निकलेगा, जीना उसी का ही नाम। केशव जी थोड़ा एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए, पहले आप कहाँ काम कर चुके हैं, इतना इनके साथ काम करें कैसे लगा? मेरा अनुभव बहुत ही सुखद, बहुत ही अच्छा था, आनंदमय रहा पूरा मेरा ये सफ़र, क्योंकि जिस तरह से हमने सोचा था, वो कई बार क्या होता है कि आप सबसे बड़े क्रिटिक अपने काम के हम खुद ही होते हैं। जब भी कोई काम हम करते हैं तो हमें लगता है कि यार इसको बेहतर से बेहतर करें, लेकिन जिस लेवल पे हमने सोचा था उससे जब बेहतर हो जाए तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि हमने जैसा सोचा उस तरह से फिल्म उभर के आ रही है। और फिल्म मेकिंग अपना आप संघर्षों भरा रहता है कि हर डगर, हर पल, हर वक्त आपको किसी न किसी का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक मुसीबतें आती नहीं है तब तक काम करने का मजा भी नहीं आता है। तो और इसी का नाम है जीना, इसी का नाम है कि मुश्किलें आए आप उसको पार करें, फिर आगे बढ़े, फिर मुश्किलें आए, और जीना इसी का नाम है। तो हम तो पहले से ही इसको जी रहे थे और फिर हमने सोचा स्क्रीन पर भी जीना कर देते हैं। और आशुतोष जी के पास में जीना इसी का नाम का बहुत बेहतरीन जवाब भी है जो उन्होंने पहले मुझे बताया था। देखिए क्या होता है, हीरो या किसी की भी जिंदगी जो होती है वो हीरोइक इसलिए नहीं होती कि वो किसी टेम्पटेशन में ना फंसे, बल्कि इसलिए हीरोइक हो जाती है कि वो व्यक्ति जो टेम्पटेशन में फंसने के बाद अपने आप को वापस राइज करे, खड़ा हो जाए, तब कहीं आप हीरोइक स्थिति में आते हैं। तो जिनकी भी जिंदगियां प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए अनुकूल परिणाम ले पाने में सक्षम होती हैं, उन्हीं लोगों की जिंदगी को आप जीना इसी का नाम है कहते हैं। और हमारी इस फिल्म में यही है कि तमाम किरदारों के पास बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, जिसको वो अपने अपने रुतबे के हिसाब से अपने अनुकूल बनाते जाते हैं, और वो उन परिस्थितियों को चीरते हुए उनके ऊपर खड़े होकर अपने व्यक्तित्व को या अपने किरदार को खड़ा कर देते हैं, सफल हो जाते हैं। अभी यही चीज आशुतोष राणा जी हिंदी में बताएंगे आपको। अच्छा अच्छा ये बड़ी खुशी की बात है कि 1999 में मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और मैंने जो बोला था वो आपको 2016 में याद है, बताइए।
ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो जीना इसी का मेरी सबसे अच्छी बात है कि मैं दुश्मनों को भी अपना दोस्त बना के चलने में माहिर हूं। तो इसलिए मुझे हमेशा से बेनिफिट ही होता है। मेरी जिंदगी में कभी मैंने दोस्तों को दुश्मन नहीं बनाया। एक हुनर मेरे अंदर है कि मैं दुश्मनों को दोस्त बनाना जानता हूं। तो जीना इसी का काम जो है, वो जो आई थी तब दुश्मन थी, लेकिन होते होते दोस्त होगी तो बेनिफिट देके जाएगी। कि आपने मेकिंग तो कंप्लीट कर दी, बट जाहिर सी बात है कि आपके घर में भी, फैमिली में भी सलीम सर ने या सलमान सर ने मेकिंग देखी होगी। तो सलीम सर ने और सलमान सर ने, हाँ, उनकी मेकिंग देखी, उन्होंने नहीं देखी। ओके, आपकी फैमिली में किसी ने भी मेकिंग देखी है? इस फिल्म की? या नहीं सर। ओके, अभी तो रिलीज हुआ है। मेकिंग कैसे देखेंगे अभी? अभी तो रिलीज हुआ है। जो प्ले कर रहे हैं आप स्क्रीन पे, वो देखी होगी आप? नहीं देखिए ना, मैंने खुद नहीं देखी है। तो काम करती है। आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा किसका कैरेक्टर किसी ने पसंद किया? सबसे ज्यादा इस मूवी में जब देखेंगे तो कैसे पसंद करते हैं यार? आप देखो इतने सारे सर, आपको 4 बार में कैसे पाओगे? किसी ने देखी नहीं है। अच्छा है, थोड़ा सा कौला माल है। ये लकी मैस्कॉट है। मैंने 2 फिल्में की है इसके साथ। इससे पहले दोनों फिल्में हिट हुई है। कभी जाने तू या जाने ना, एंड किस किस प्यार करूं, एंड नाउ दिस फिल्म। तो मैं तीसरी हिट मंजरी की वजह से तीसरी हिट मिलेगी। इस वजह से हैट्रिक है। Tell me about the role of this. Well, I don't think I'm allowed to reveal too much about my role. And also it's a very difficult role to describe because she's changing throughout the film according to the situations she's coming across, how she is changing, how she's growing as an individual. So I will not be able to explain you properly till you watch the film and understand. But in short, she's a very intelligent, strong-headed girl who will never let anything pull her down, and she will just come across, she'll come out to be a winner in any situation. So. अभी यहाँ से सारे सवालों का जवाब आना देगी आपको। येलो और हमारे बीच में हमारी फिल्म के और भी कलाकार हैं, अश्लेषा जिन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया है, वो भी हमारे बीच में है। तो आई लाइक टू महक ठाकुर, शी हैज डन गुड वर्क। एंड अशोक जी बाकी हमारे साथी हैं मंच पर।